Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman, my all sweet dear student, my all dear student, your time with now your classes morning will be from 9 a.m. to 11 a.m., which is very pleasant time. For our preparation, I want to say to all the students that you study in depth and try to understand the importance of education, because education can only lead you to high. You are the future of tomorrow and the backbone of our country. If you become educated, then the country will develop on its own. Development depend on your development. That means if you start a good education, then our country automatically developed. So let's all upgrade the country together. Deeply understand everyone should understand education. Give importance to the chapter. Try to read every chapter in depth. Your today's chapter is an important chapter. The reproduction of plant in biology, only chapter about you which 33% mark of biology. This is only alone biology chapter that your upcoming exam you will get 33% mark in biology reproduction in plants. Second, other are every point in this chapter will understand deeply and discuss with each you ever if you do not understand anywhere, you will not be ashamed. Please feel free to ask anytime. Please feel free to ask. No one should be doubt in your mind. If you have a problem, then you give me message. Our YouTube video is there, then please inform us, because if you are the left understanding, then in the coming tomorrow you will not be a good student. I think all my students will agree to this. Okay, student? Dear student, reproduction in plants. Reproduction in plants are two types: asexual and sexual. Asexual also divide further four types: budding, fragmentation, sporulation, vegetative propagation. Dear student, first we discuss about budding, because you know about asexual and sexual reproductions in previous video. Budding, in budding a valve-like projection called bud, यानी कि किसी सेल्स में एक वल्व लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसे हम बड कहते हैं. ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म दिस बड ग्रो इनटू अ ऑफस्प्रिंग एंड मे इवेंचुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द पेरेंट्स. और जब यह पेरेंट से अलग हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे देता है. क्या आपने अदरक देखी है? अदरक में आपने छोटे छोटे बड निकलते हुए देखे हैं. अगर इन बड्स को आप अलग कर दोगे और ग्रो कर दोगे तो एक नया अदरक का प्लांट बन जाएगा. अदरक का बॉटनिकल नेम है जिंजीबर ऑफिसिनिलस. जिंजीबर ऑफिसिनिलस. लेकिन यहाँ पर अदरक एग्जाम्पल नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों. यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल देने वाले हैं वो ईस्ट की सेल का देंगे आप. ईस्ट सेल, ईस्ट की जो सिंगल सेल होती है उसमें छोटे छोटे बड निकलना स्टार्ट कर देते हैं. और यदि इन बड्स को आप अलग कर देंगे तो हर एक बड एक नए
ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे देगा, एक नए जीव को जन्म दे देगा, एक नए ईस्ट को जन्म दे देगा। In yeast, a little cytoplasm accumulate at one end of the cell and a bud is formed. The nucleus divided into two. और जो आपकी ईस्ट की सेल है उसमें न्यूक्लियस के साथ साथ प्रोटोप्लाज्म भी, मतलब प्रोटोप्लाज्म तो ऑलरेडी बड में डिवाइड हो ही गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस भी पहुंच जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आपको यहाँ पर सेल को समझना होगा, सेल को। ओके स्टूडेंट, अगर आपको सेल समझ में आ रहा है देन आप इसे समझ सकते हैं कि मैं प्रोटोप्लाज्म क्या है और ये न्यूक्लियस क्या है। मैं आपके लिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। द बड ग्रो एंड इवेंचुअली गेट डिटैच्ड, और ये बड ग्रो करती है, बाद में अगर हम इसे डिटैच कर देते हैं, अलग कर देते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल, अपने पेरेंट सेल से, टू फॉर्म अ न्यू सेल। और जब इस हम बड को अलग करेंगे तो ये नया सेल बना देगा। क्या बना देगा? नया सेल बना देगा, ठीक है। द प्रोसेस कंटिन्यू एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ईच सेल एंड प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है ईच सेल में छोटे से समय के लिए। इफ द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन इज इनफ, अगर सप्लाई न्यूट्रिशन की पर्याप्त है, बड फॉर्मेशन अकर रैपिडली टू फॉर्म अ चेन ऑफ ईच सेल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड फॉर्मेशन इन ईस्ट, यहाँ पर सबसे पहले सबसे नीचे एक सेल है, एक सेल में दो बड निकली हैं, दो में से और बड निकली हैं, और ये बड जब अलग हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनमें एक जो आपका न्यू प्लांट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन में बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, स्पोरुलेशन में नए नए स्पोर्स बनेंगे, है ना। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक बड़ा प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो तरह से होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक तो प्राकृतिक रूप से होगा और दूसरा कृत्रिम रूप से होगा। यानी प्राकृतिक रूप से बाय रूटिंग, बाय स्टेम, बाय लीव्स, यानी कि रूट के द्वारा नया प्लांट बन जाना, स्टेम के द्वारा नया प्लांट बन जाना, लीव्स के द्वारा नया प्लांट बन जाना। और आर्टिफिशियल रूप से हम लोग क्या करते हैं, स्टेम को कट कर देते हैं, लेयरिंग लगा देते हैं, ग्राफ्टिंग कर देते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे बनाइए। अगर आपके पास कोई ब्लैंक पेज है तो ये पूरा का पूरा चार्ट आप बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें हमें समझ में आया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये 4 टाइप का है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।